Okay, so good evening and hello everyone, and welcome to today's session of Dil Ke Doubts. मेरा नाम नीरज शर्मा है and I will be your host for this evening. जैसा कि जो टाइटल है हमारा स्मोकिंग एंड योर हार्ट व्हाट एवरी पेशेंट शुड नो, तो आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं. तो स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीज. Yet many patients and families are often unsure about how it affects the heart and blood vessels. So in this session, we will discuss about how smoking impacts the heart, why it increases the risk of heart disease and complications, and what patients should know about quitting smoking for better heart health and recovery. So this will be followed by an interactive question and answer session where participants can also ask their questions. Let me introduce you briefly to SOCVPR. So today's session is organized on the occasion of Pulmonary Rehabilitation Week 2026 in collaboration with the Society for Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation, that is SOCVPR. So this is an important group working to strengthen patient care and recovery systems across India. And together with HHIF, that is Heart Health India Foundation, they are helping us create safer, stronger recovery journeys for patients and families. So, let me introduce the speaker to you. It is my privilege to introduce our speaker for today. We are joined by Dr. Khyati Kothari, Professor and Head of the Department of Cardiovascular and Respiratory Physiotherapy at KJ Simaiya College of Physiotherapy. She is also a member of SOC VPR and works extensively in the field of cardiac and pulmonary rehabilitation. Her work focuses on helping patients improve their functional capacity, manage recovery after cardiac events, and adopt safer lifestyle practices that support long-term heart health. So we are very glad to have her with us today to guide us through this important topic. So I am myself, Neeraj Sharma. I'm also a heart patient, and I hope to get much better insights from her today. So, Dr. Khyati, the session is yours now. Thank you, Mr. Neeraj. Thank you, Pratisha. At the outset, I would like to thank HHIF and SOCVPR and Dr. Grishma and Dr. Maria to give me this opportunity to speak on this big platform. And so today I would be giving a talk on smoking and heart health. So it will be a mixture of Hindi and English that I would be giving. I hope that would be okay. And in case if you have any doubts, you can very well raise the questions during the Q&A session. So I'll share my slide now. Is my slide visible now? Yes. Okay. So today we'll be talking on smoking and heart. That is how कैसे smoking आपका दिल की सेहत के लिए हानिकारक है. ओके सो बहुत बार ऐसे होता है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि अभी हमारा एंजियोप्लास्टी हो गया है, बाईपास हो गया है या हार्ट अटैक हो गया है. हार्ट इज एनीवेज नॉट इन द नेचुरल फॉर्म, कुछ रिपेयर किया गया है. तो अभी अगर मैंने 1-2 सिगरेट लिया तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा. तभी उनसे कहा जाता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता, बट दिल को डेफिनेटली फर्क पड़ता है. और ये जितना जल्दी आप समझ जाते हैं उतना जल्दी आप रिकवर हो पाते हैं. सो बेसिकली ये सेशन में मैंने 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट विच विल टॉक अबाउट स्मोकिंग कैसे आपके हार्ट और लंग्स पे असर करता है. जब हम हार्ट की बात करते हैं तो लंग्स कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट. हार्ट और लंग इज ऑलवेज एक यूनिट की तरह काम करता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट हार्ट, लंग्स उसके साथ में आ ही जाता है. सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन में हम देखेंगे कि आप जब स्मोकिंग बंद करते हैं, जब स्टॉप करते हैं, उस दिन से लेके जब तक आप नहीं करते तब तक कितना बेनिफिट होता है एंड हाउ फास्ट यू कैन रिकवर फ्रॉम इट. एंड थर्ड, हाउ कैसे फिजियोथेरेपी आपको हेल्प करेगा टू स्टॉप स्मोकिंग and be on a healthier pathway. So
एक बार एक पेशेंट हमारे पास आया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि अभी मेरी एंजियोग्राफी, मतलब 55 ईयर ओल्ड मेल थे, और उन्होंने मुझे बोला कि अभी मेरा एंजियोप्लास्टी हो गया है एंड आई एम इन अ कार्डियक रिहैब। हावेवर, मेरा एक ग्रैंडसन है और मैं उसके साथ खेल नहीं पाता। दिस पर्सन हैड जस्ट एनरोल, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही एनरोल किया हुआ था, और वो बोल रहे कि वो उनके ग्रैंडसन के साथ खेल नहीं पाते। एक क्वेश्चन उनको पूछा कि आपने स्मोकिंग आप अभी बंद करने वाले हैं क्या? एंड ही सेड यस, डॉक्टर ने मुझे बोला है स्मोकिंग मुझे बंद करना चाहिए, एंड मैंने सोचा है कि आई विल नॉट स्मोक। सो उन्होंने उस दिन से स्मोकिंग बंद किया। एंड आफ्टर द रिहैब वाज डन, सी आफ्टर 6 weeks to 8 weeks, जब उनका रिहैब कंप्लीट हुआ, तो यही पेशेंट मेरे पास चल के आते हैं और वो बोलते हैं कि थैंक यू डॉक्टर, आज मैंने स्मोकिंग बंद किया। सिर्फ एक स्मोकिंग बंद करने से मेरे में इतने सारे बदलाव आए, इतने चेंजेस हुए कि नाउ आई कैन प्ले विथ माई ग्रैंडसन, मैं उसके साथ पार्क में खेल पाता हूँ। सो चैलेंज ये है कि आपका हार्ट, जब हार्ट अटैक होता है या एंजियोप्लास्टी होता है, तभी हार्ट एक रिकवरी के पीरियड से पास हो रहा होता है। इसलिए ऐसे समझिए जैसे आपके घर में एक दीवार पे क्रैक आई हुई है और उसको कारपेंटर ठीक कर रहा है। जब वो कारपेंटर ठीक कर रहा है, दूसरे ही जगह पे ऑन दैट वॉल कोई हथौड़ा जोर से मार रहा है, तो क्या होगा? क्या आपका क्रैक रिपेयर होगा? नहीं। स्मोकिंग यही एक हथौड़ा है, ये दिल की रिकवरी को बहुत स्लो कर देता है। बट आपका आपका डिसीजन टू स्टॉप स्मोकिंग को बहुत हेल्प करेगा आपके हार्ट को रिकवर होने के लिए। सो आइए देखते हैं कि वो कैसे। हाँ, सो एक जानते हैं कि आप जब स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग में, वो सिगरेट में 7,000 केमिकल्स होते हैं। उन 7,000 केमिकल्स में से एक केमिकल की बात करते हैं जिसे बोलते हैं निकोटिन। निकोटिन जैसे ही आपका एक पफ सिगरेट का निकोटिन आप इनहेल करते हो, निकोटिन क्या करता है? बॉडी में एक हार्मोन रिलीज करता है जिसके बोलते हैं एड्रेनलिन। यह एड्रेनलिन एक हार्मोन है जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट तुरंत बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपके आर्टरीज, जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, जो आपके ऑक्सीजन को लंग्स के थ्रू बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी वो स्प्रेड करता है, ये आर्टरीज को एक्सेसिव स्ट्रेस पे डालता है। निकोटिन इतना ही नहीं, निकोटिन आपके ब्लड को बहुत जाड़ा कर देता है, आर्टरीज को इतना स्टिकी बना देता है कि उसके ऊपर एक प्लाक जमा होना स्टार्ट होता है, विच अल्टीमेटली बिकम्स अ क्लॉट, एक वो क्लॉट बन जाता है। तो निकोटिन एक पफ से इतना सारा चेंजेस निकोटिन कर सकता है। दूसरा दूसरा एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। आप जब इनहेल करते हो, आप ऑक्सीजन लेते हैं, और जब आप एक्सहेल करते हो, सांस छोड़ते हो, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। सो आप जब इनहेल करके ऑक्सीजन जब लंग्स में जाता है, लंग्स अपने बॉडी में एक हीमोग्लोबिन केमिकल रहता है, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को जाके बाइंड हो जाता है, और ये हीमोग्लोबिन थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होता है, एंड ऐसे आपके पूरे बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचता है। अब आप स्मोकिंग करते हैं तो क्या होता है? इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जब बाइंड होते हैं, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है, मतलब बिफोर ऑक्सीजन कैन रीच बिफोर ऑक्सीजन कैन रीच हीमोग्लोबिन, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच जाता है, और ये इट डजंट अलाउ ऑक्सीजन टू बी सर्कुलेटेड इन द बॉडी। तो अब आपके बॉडी में क्या सर्कुलेट हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि जरूरत है आपको ऑक्सीजन की। ऐसे इमेजिन करिए कि गाड़ी को पहाड़ पे चढ़ना है और पेट्रोल ही आप आधा भर रहे हो। पेट्रोल इज योर ऑक्सीजन, वो अगर आधा जा रहा है तो आपका कितना कैपेसिटी रहेगा कोई एक्सरसाइज करने का या आपका फंक्शनल एक्टिविटीज करने का। सो सेकेंड थिंग व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्मोक इज, ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, आपके बॉडी का मेन एनर्जी फ्यूल सिस्टम को डिसरप्ट करता है।
आर्टरीज को, जैसे मैंने बोला, आर्टरीज के अंदर के लेयर को वो इतना स्टिकी बना देता है कि जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल मूव होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्रीली मूव होता है, पर अभी ये कोलेस्ट्रॉल जाके आर्टरीज में चिपक जाता है। अब जब ये आर्टरीज में चिपक जाता है, इट फॉर्म्स अ प्लाक, उसे हम प्लाक कहते हैं। आज ये जो हम बोलते हैं कि मुझे कोलेस्ट्रॉल है, मुझे ट्राइग्लिसराइड्स है, मतलब क्या, ये सब आर्टरीज के चिपक के एक क्लॉट बना देता है, आर्टरीज को नैरो कर देता है। जब आर्टरीज नैरो हो जाते हैं, उसमें से ब्लड फ्लो इजीली नहीं हो पाता, और जब ब्लड फ्लो इजीली नहीं हो जाता, तो आप जब एक्टिविटी करते हो, आपको जो सिम्टम आता है, जो आप बोलते हो कि मैं बहुत थक जाता हूँ, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आर्टरीज में से आपका हार्ट को बराबर से ब्लड नहीं जा रहा है, इसकी वजह से इसको इसको ही बोलते हैं हार्ट अटैक। ओके, तो ये सब, दीज आर द चेंजेस जो आपका स्मोकिंग यानी निकोटिन और कार्बन मोनोऑक्साइड असर करता है। इसकी वजह से अब जब हार्ट पे इतना ज्यादा वर्कलोड हो गया है, ओके, और आपका हार्ट एक रिकवरी फेज से गुजर रहा है, और आप स्मोकिंग कंटिन्यू कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपका हार्ट रेट 10 to 20 बीट्स पर मिनट बढ़ जाता है इंस्टेंटली। देयर इज अ सडन राइज इन ब्लड प्रेशर एक स्पाइक आता है, और हार्ट को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लगता है टू पंप टू वर्कआउट। हार्ट के साथ साथ लंग्स पे भी उतना ही बुरा असर होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिन का। क्या होता है स्मोकिंग करने से? स्मोकिंग करने से आपके एयरवेज जो है, आपका ट्रकिया, आपके ब्रोंकस, जो आपके लंग्स के अंदर जो पाइप्स रहते हैं, उस पे वो असर करता है। उसकी वजह से आपके एयरवेज नैरो हो जाते हैं, बलगम ज्यादा बनता है, ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है ये सारे एयरवेज में, और इसी की वजह से आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होता है वो कम हो जाता है। आपके जो रेस्पिरेटरी यूनिट्स यानी जो एल्वियोलाई होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक हेल्दी एल्वियोलाई है और ये एक अफेक्टेड एल्वियोलाई है स्मोकिंग की वजह से। हेल्दी एल्वियोलाई अगर आप देखते हैं तो अच्छा फुला हुआ पिंक है, वेरेज ये अगर आप देखते हो इट्स अ डेड एल्वियोलाई, ब्लैकिश हो जाता है, उसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो चली जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा बलगम वगैरह बॉडी में, लंग्स में जमा होना शुरू होता है। इसके लिए यही पेशेंट्स को काफी खांसी रहती है, और एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम द कॉफ। अब क्या होता है, आप जब रिकवरी के पाथ पे आते हो, आप जिस दिन डिसाइड करते हो कि ओके मुझे अभी ये स्मोकिंग स्टॉप करना है, ओके, तो एक अच्छी बात अभी है कि काफी लोगों को पता चल रहा है कि स्मोकिंग के कितने इल इफेक्ट्स होते हैं, स्मोकिंग कितना बुरा असर करता है आपके बॉडी पे। इसके लिए अभी ग्लोबल ट्रेंड आप देखेंगे तो काफी लोग स्मोकिंग को छोड़ रहे हैं। ओके, एज सुन एज दे रियलाइज दैट इतना ज्यादा असर कर रहा है, दे आर लीविंग इट। ओके, सो इफ यू सी दिस ग्राफ, इट्स ऑन अ इट्स इन अ डिक्लाइनिंग वे। सो ग्लोबल यूज ऑफ टोबैको अभी कम हो रहा है। क्या होता है, क्या टाइमलाइन है कि आपका हार्ट रिकवर हो जाता है कंप्लीटली? सो जब आप स्टॉप करते हो स्मोकिंग, विद इन 20 मिनट्स आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, एंड इट कम्स टू ऑलमोस्ट अ नॉर्मल लेवल। उसके बाद आफ्टर 12 आवर्स कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल्स आपके ब्लड में कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है। विद इन 2 to 12 वीक्स आपका सर्कुलेशन इतना बेटर हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स हैव गॉन डाउन ट्रेमेंडसली, और जिसकी वजह से आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपका लंग फंक्शन इंप्रूव होता है, और इसकी वजह से आपकी जो एक्सरसाइज कैपेसिटी है वो सब बढ़ जाती है। विद इन 1 year ऑफ क्विटिंग, 1 साल, ओके, एंड आपका रिस्क ऑफ नेक्स्ट हार्ट अटैक या रिस्क ऑफ फर्स्ट हार्ट अटैक ऑल्सो reduces by half compared to the ones who have not stopped smoking. Okay, पूरा रिस्क आपका हाफ हो जाता है, बाय द टाइम यू आर कंटिन्यूइंग से फॉर अनदर 15 years द सेम थिंग, आपका रिस्क बिल्कुल निल हो जाता है, आपका हार्ट इज एज गुड एज अ नॉन स्मोकर्स हार्ट। दूसरी बात ये भी होती है कि जब आप स्मोकिंग करते हो तभी मेडिसिन के असर भी कम होता है। सो नॉर्मली अगर मेडिसिन को टाइम लगता है से 4 hours 5 hours टू वर्क ऑन यू, ओके, एंड गेट द रिजल्ट,
तो आप जब स्मोकिंग करते हो तो ये इफेक्टिवनेस कम हो जाता है, इट विल टेक 14-15 आवर्स टू वर्क। ओके, तो स्मोकिंग की वजह से भी आपके मेडिसिन पे असर होते हैं। बहुत बार आप बोलते हो कि मुझे क्यों 2 मेडिसिन लेनी पड़ती है ब्लड प्रेशर के लिए या 3 मेडिसिन लेनी पड़ती है ब्लड प्रेशर के लिए। वन ऑफ द रीजंस कुड बी स्मोकिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट इज द ओनली रीजन, पर एक रीजन हो सकता है ये स्मोकिंग की वजह से भी उसका इफेक्टिवनेस काफी कम हो जाता है। सो एक बार आप जब स्मोकिंग बंद करते हैं तो आपके मेडिकेशंस इफेक्टिवली काम करना स्टार्ट करते हैं। वो आपके हार्ट रेट को कंट्रोल में लाते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाते हैं, एंड ओवरऑल एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं फॉर एक्सरसाइज एंड रिहैब। आपका ब्लड प्रेशर विद इन 20 मिनट्स इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन। अभी जो सीरियल सिगरेट स्मोकर्स रहते हैं, ओके, जिसको हर 1 घंटे में एक स्मोक करने की जरूरत पड़ती है, तो इमेजिन करिए कि एक अगर आप स्टॉप करते हैं और 20 मिनट में वो ऑलमोस्ट नीचे आना स्टार्ट होता है और आप उसमें दूसरा पफ ले रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर स्टेबलाइजेस व्हेन यू स्टॉप स्मोकिंग। आपका रिस्क रिडक्शन काफी कम हो जाता है। अगर आप एग्जिस्टिंगली अभी भी आप स्मोक कर रहे हो तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो। 1 साल आप जब क्विट कर देते हो तो ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन हो जाता है। 5 years क्विटिंग में आपका 70% रिडक्शन हो जाता है, एंड 15 years में ऑलमोस्ट यू आर एज गुड एज अ नॉन स्मोकर। आपका फिजिकल एंड्योरेंस तुरंत ही बढ़ जाता है विद इन 12 months। आप अगर आज से 1 किलोमीटर चल पाते हैं तो विद इन 1 month 2 month यू विल सी दैट यू हैव इंक्रीज योर डिस्टेंस टू 2 kilometers 3 kilometers। सो आपका एंड्योरेंस बढ़ता है। So what you need is a quit plan. Okay, how कैसे मुझे ये quit करना है? Now there are various sessions where there are various programs which talks about smoking cessation. उसमें आप enroll करेंगे। This is just a small glimpse आप क्या कर सकते हैं for quitting smoking. One is you choose a quit date. आप कौन से डेट को quit करने वाले हैं? Announce that, inform your family member that this is the date I'm going to quit. एक रूम में एक लिस्ट लगाइए विच इज रीजंस टू क्विट। आप क्यों क्विट करने वाले हो? व्हाट आर द पॉसिबल 1 2 3 4 उसको लिस्ट करिए। ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लगता बहुत सिंपल है, ये क्यों करूं मैं, पर दिस विल कॉन्स्टेंटली टेल यू, आपको रिमाइंड कराते रहेगा कि आप क्यों क्विट कर रहे हो। आपने आज क्विट करने का क्यों सोचा? व्हाट इज दैट प्राइमरी रीजन कि आप क्विट कर रहे हो? और ये आपको लगातार फीडबैक देता है, okay, this is the reason you are to quit it. And after you achieve a certain milestone, say 1 month 2 month, reward yourself. Okay, so this will help. This is just a quit plan that you can follow. जब आप जिस दिन आप सिगरेट छोड़ते हैं या एनी फॉर्म ऑफ टोबैको छोड़ते हैं तो आपको आता है एक withdrawal symptoms, and these are common withdrawal symptoms. Now why I'm telling this is that आपके अलावा आपके फैमिली और फ्रेंड्स को भी ये सिम्टम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज देन दे विल वंडर कि ये ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। तो फर्स्ट वन इज क्रेविंग्स, तलब लगना। आपको बार बार ऐसे लगेगा कि नो मुझे जाके एक स्मोक कर लूं, एक पफ कर लूं, तो आपको एक क्रेविंग्स होती है। सेकेंड होता है इरिटेबिलिटी, आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको नींद कम आती है, आपको भूख ज्यादा लगती है, पर ये सब टेम्पररी है, ये सब मैनेजेबल है। What you need help, how we can help you in this quitting process is, एक आप काउंसलिंग सपोर्ट के लिए जाइए, तो दे माइट ऑल्सो सजेस्ट यू टू जॉइन अ सपोर्ट ग्रुप। एक सपोर्ट ग्रुप रहता है जिसमें लोग मिलके दे टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन दे स्मोक, व्हेन दे हैव स्टॉप स्मोकिंग। जब स्मोकिंग स्टॉप कर दिया तो क्या क्या चेंजेस आए, उनको क्या प्रॉब्लम्स आया था, क्या डिफिकल्टीज आए थे, हाउ डिड दे ओवरकम दीज डिफिकल्टीज। बिकॉज ऐसे हो सकता है कि आपको भी सेम चैलेंजेस आ रहे हैं जब आप छोड़ रहे हो, एंड आप बहुत क्लूलेस हो कि मुझे इसमें क्या करना है। सो हैव अ सपोर्ट ग्रुप, जॉइन अ सपोर्ट ग्रुप। Also talk to your doctors about nicotine replacement. Now nicotine replacement is आप सिगरेट डायरेक्टली या स्मोकिंग डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, बट देयर आर अदर वेज जिसकी वजह से बॉडी में निकोटिन का लेवल्स
बढ़ता है, बट नॉट टू एज ग्रेट एज आप जब टोबैको स्मोकिंग एक्चुअली करते हो. सो आई एम नॉट सेइंग निकोटिन रिप्लेसमेंट पूरे लाइफ टाइम करना है. इट्स जस्ट अ शॉर्ट स्पैन between your just quitting and between complete when you have completely quitted. Okay, so nicotine replacement is just one option which is a temporary phase. And see how you're doing your quit plan. How are you planning your quit process? So nicotine replacement options जो मैंने बोला, doctors generally give you a patch which you apply it up आर्म में या ऐसे हैंड शोल्डर्स पे, आर्म में या एब्डोमेन पे लगाते हैं, एंड दिस विल रिलीज निकोटिन टू सम एक्सटेंट. तो आपकी जो क्रेविंग्स है, जो चिड़चिड़ापन है, वो थोड़ा सा कम होता है, बट येस इट विल स्टिल डिलीवर सम अमाउंट ऑफ निकोटिन. सो नॉट अ लॉन्ग टर्म, बट येस इट विल हेल्प यू थ्रू द प्रोसेस. सो आइदर इट इज इन फॉर्म ऑफ पैचेस और गम्स आते हैं, उसके च्यूएबल टैबलेट्स आते हैं, lozenges आते हैं, and there is inhalers. Okay, all this is with respect to doctor's guidance. किसी कोई को इतना ज़्यादा withdrawal symptoms आता है that they needs to be admitted. Okay, so in such cases, these are one of the options that they can give for temporary management. दूसरा जो हम एडवाइस करते हैं is your behavioral strategies. Okay, how you can change your behavior. स्मोकिंग जब आपको क्रेविंग्स आती है तो आपने क्या करना है? फर्स्ट, अवॉइड द ट्रिगर्स. आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या ट्रिगर करता है टू स्मोक. समबडी विल से दैट मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, एक्सेसिव काम इज गोइंग टू कॉज मी, इज अ ट्रिगर फॉर मी. कोई बोलता है इमोशंस, इमोशन व्हेनेवर आई गो डाउन इन माय इमोशन दैट ट्रिगर्स मी और मुझे स्मोक करना पड़ता है. सो अवॉइड दोज ट्रिगर्स और मैनेज दोज ट्रिगर्स, आइडेंटिफाई दोज ट्रिगर्स. सो जैसे अगर आपको क्रेविंग्स हुआ, ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज you can have some form of distraction. Okay, distraction can be in the form of उठ के पानी पी के आ जाइए, या start doing breathing exercises, start doing some stretching exercises. Okay, talk to your friends, call. आप जब कॉल करते हो, किसी के साथ बात करते हो, तो काफी आपका ध्यान बढ़ जाता है. Listen to music. So some activities which is enjoyable to you, try to do that. So एक बार आप ये बाकी की डिस्ट्रैक्टर्स पे आप जब काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जो ट्रिगर है वो कम हो जाता है, एंड देन यू डोंट हैव दैट क्रेविंग. ओके, सो चेंज योर बिहेवियर, यूज दीज बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज व्हेनेवर यू हैव दैट क्रेविंग्स फॉर स्मोकिंग. बहुत बड़ा हिस्सा होता है फैमिली एंड सोशल सपोर्ट का व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ क्विटिंग. दे नीड टू आइडेंटिफाई कि ओके, जो ये चिड़चिड़ापन हो रहा है, जो इनको नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, जो इतना थकान लग रहा है, दैट इज टेम्पररी एंड इट इज अ फेज विच विल गो अवे, एंड दीज आर ऑल विड्रॉल सिम्टम्स. सो वंस दे आइडेंटिफाई ओके कि इनको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ज्यादा सपोर्ट उनको दे. सो फैमिलीज एंड फ्रेंड्स आर एनकरेज्ड टू सपोर्ट देम इन द प्रोसेस. मेक हाउस अ स्मोक फ्री होम. ओके, एंड एक अकाउंटेबिलिटी आप एक रख सकते हो. आपके साथ कोई एक जन जो आपको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करे, वो आपका वाइफ, आपका हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, सन, डॉटर या फ्रेंड्स. somebody has to be an accountable who will keep asking you कि भाई आपका आज हेल्थ कैसे है, are you still having that cravings, how are you dealing with cravings, give me a call when you have craving, give me a call when you don't feel well. Okay, so एक accountability partner रखिए which will help in the process of quitting. Prevent relapse को prevent करिए. So avoid, so as I said कि आपके जो triggers है वो identify करिए, see to it कि आप वो triggers में ना जाए. Have a backup plan. अगर आप वो trigger, वो situation में जाने वाले हो, तो आप उसका क्या backup plan है, आप क्या करोगे उसके लिए. ऐसे नहीं है कि आप स्लिप नहीं होंगे. इट विल हैपन दैट वंस और ट्वाइस यू विल फेल, यू विल गो एंड स्मोक वन पफ, वन सिगरेट, बट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. ओके, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप उसको धीरे धीरे करके कंप्लीटली छोड़ दें एंड स्टे फोकस्ड ऑन द गोल्स. इन द फर्स्ट स्लाइड व्हेन आई हैड सेड दैट लिस्ट डाउन द रीजंस टू क्विट, दिस विल हेल्प टू फोकस ऑन योर गोल ऑफ quitting smoking. How we as physiotherapists help you.
ओके, फिजियोथेरेपी आपको कैसे हेल्प करेगा. सो बेसिकली व्हाट वी डू इज वी गिव यू एन एक्सरसाइज प्रोग्राम विच विल हेल्प टू इंक्रीज योर लंग कैपेसिटी. आपके लंग कैपेसिटी बढ़ता है, आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, एंड इन ओवरऑल देन आपके हार्ट मसल जो भी एक मसल है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है. सो लंग री एक्सपेंशन जो हम बोलते हैं, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो देते हैं, दैट ब्रीदिंग एक्सरसाइज विल हेल्प टू ओपन अप द alveoli, द लंग्स. alveoli करके एक स्ट्रक्चर होता है आपके लंग्स में जिसमें हवा जाती है और वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन एंड आउट होता है. तो वो जो alveoli है उसकी कैपेसिटी बढ़ाती है व्हेन यू डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज. उसको और ज्यादा इलास्टिक बनाता है, उसको डैमेज होने से और बचाता है. सो दैट इज वन. सेकेंड इज एयरवे क्लियरेंस. स्मोकिंग की वजह से आपके अंदर लंग्स में बहुत म्यूकस जमा हो जाता है. म्यूकस इज कॉफ सिक्रीशंस जमा हो जाते हैं जो हेल्प करता, जो which can be helped through various airway clearance techniques. Improve exercise tolerance. Okay, एक systematic exercise plan देते हैं which will help to increase your endurance. Lastly, stress management. How stress can be taken care by doing various breathing exercises and by doing various movements, how stress can be managed. So these are the basic goals जो हम फिजियोथेरेपी के लिए करेंगे. एक सिंपल एक्सरसाइज है, हम बोलते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग. पर्स लिप ब्रीदिंग इज व्हेन यू आस्क द सब्जेक्ट टू टेक अ डीप ब्रेथ. नाक से एक लंबा सांस लीजिए, उसको 2 सेकंड के लिए पकड़ के रखिए और फिर मुंह से फूंक मारिए. जब आप फूंक मारते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इट्स लाइक आप जैसे चाय को फूंक मार रहे हैं ठंडा करने के लिए, या फिर आपके सामने एक कैंडल है और कैंडल पे जो फ्लेम है वो बुझनी नहीं चाहिए. इट शुड जस्ट शेक अराउंड. सो उस तरह से आपने ब्रीद आउट करना है. दिस इज कॉल्ड एज अ पर्स लिप ब्रीदिंग. ये क्या करता है? पर्स लिप ब्रीदिंग करने से आपके लंग्स में एक बैक प्रेशर क्रिएट होता है जो आपका एल्वियोलाई, जो मैंने बोला कि जहाँ पे आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन होता है, वो एल्वियोलाई को मेंटेन करता है. ओके, एंड गैस एक्सचेंज कैन हैपन इजीली. सो दिस इज योर पर्स लिप ब्रीदिंग. सेकेंड सिंपल एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं वो है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. सो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कैसे करते हैं? इसको हम बेली ब्रीदिंग भी बोलते हैं. सो क्या करते हैं, आप सीधा बैठिए, एक हाथ चेस्ट पे रखे, एक हाथ पेट पे रखिए. आप जब लंबा सांस लेते हो तो यू शुड सी टू इट कि आपका पेट बाहर आता है और ब्रीद आउट करने के टाइम पेट अंदर जाता है. लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज यू विल गेट टू सी व्हाट इज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. These are simple exercises but very effective to improve your overall capacity. Okay, जब अच्छे से ऑक्सीजन जाता है और बाद में बॉडी में सर्कुलेट होता है तो इवेंचुअली आपका कैपेसिटी बढ़ता है. कफ निकालने के भी काफी टेक्निक्स रहते हैं. इसमें से एक टेक्निक है हफ, जिसको सिंपली इस तरह से करता है. आप लंबा सांस लीजिए, ओके, और फिर आप मुंह खोल के जैसे आप मिरर में फॉग करते हैं उस तरह से आपको कफ करना है. सो इससे क्या होता है कि आपका सिक्रेशन जितना पेरिफेरी, जितना लंग्स में है, वो सारा सेंट्रल आपके ट्रकिया के तरफ आता है, एंड देन इट बिकम्स इजी फॉर यू टू एक्सपेक्टोरेट. देन इजीली आप निकाल सकते हैं. सो दिस इज वन टेक्निक विच इज एन एयरवे क्लियरेंस टेक्निक, हफ. नेक्स्ट दैट यू कैन डू इज एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन. आई एम श्योर आपके जो थेरेपिस्ट है वो एक स्टैंडर्ड, एक पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज प्लान आपके लिए बनाते हैं, जिसमें नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं 5 to 10 मिनट्स. आपने अगर जस्ट ज्वाइन किया हुआ है रिहैब तो दे विल स्टार्ट विद अ स्मॉल ड्यूरेशन से 5 to 10 मिनट्स एंड ग्रेजुअली दे टेक यू टू 30 to 45 मिनट्स ऑफ एन एक्सरसाइज सेशन. कोई भी थेरेपिस्ट ये नहीं करेगा कि आपको सीधा आपके मैक्सिमम कैपेसिटी पे डाल देते हैं. वी ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल ड्यूरेशन एंड देन रीच टू अ ड्यूरेशन ऑफ 150 मिनट्स पर वीक के हिसाब से. इसकी वजह से आपके हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर पे काफी असर होता है. इट बिकम्स मच बेटर. बट आई वुड सजेस्ट दैट दिस रिहैब शुड बी डन in presence of a therapist, in under supervision of a therapist.
आई एम श्योर वो एक बार जब देख लेते हैं आप किस तरह से कर रहे हैं, तो काफी बार वो थोड़ा होम एक्सरसाइज प्रोग्राम भी देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतनी एक्सरसाइज आपके लिए सेफ है. Do not overdo. Exercise is also a medication. Okay, overdo will also has its own side effect. So जैसे आपके थेरेपिस्ट इंश्योर करते हैं आपको आपका वॉकिंग करने के लिए या आपको जिस इंटेंसिटी से चलना है, that should be worked upon. Apart from walking, सिर्फ walking is not needed. You also need to do some kind of strength training. ओके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप रेजिस्टेंस बैंड से कर सकते हो, या आप वेट कफ से कर सकते हो, डंबल से कर सकते हो. अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, एक सिंपल पानी के बॉटल से भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट टू योर एरोबिक एक्सरसाइज. हाउ डू यू नो कि मुझे कितना फास्ट करना है या कितना ज्यादा करना है? ओके, सो वेरी फेयर आइडिया दैट आई विल गिव इज, आप जब करते हो एक्सरसाइज तभी आपको ऐसे फेयरली लाइट टू समवॉट हार्ड. नाउ दिस इज अ बॉक्स स्केल. बॉक्स स्केल 6 to 8 जो बोलते हैं कि आपको जब एक्सरसाइज करते हो तभी आपको बहुत ज्यादा लाइट फील होता है. 11 to 13 इज आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है, थोड़ा सा एक्सर्शन ज्यादा होता है. आपने इतना भी नहीं करना है कि आप वेरी वेरी हार्ड में चले जाए. ओके, सो आइडियल इंटेंसिटी आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो फेयरली लाइट टू समवॉट हार्ड होना चाहिए. So as I said, you have to manage your cravings by this 4 Ds. One is delay, do deep breathing, drink water, do some other activities to distract yourself. Listen to music, call your friend, just meditate, do something which is going to, because of which आपका वो craving चला जाता है. Craving ना थोड़े टाइम के लिए रहता है, पर ये करने से वो चला जाता है. Once it goes, then it goes. प्रोटेक्ट दोज अराउंड यू. अभी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सेकंड हैंड स्मोक. सेकंड हैंड स्मोक क्या होता है कि आप स्मोक कर रहे हो, आपका लंग्स तो आपके लंग्स पे तो असर हो ही रहा है, लंग्स एंड हार्ट पे, पर इसके साथ आपके आजू बाजू में जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली है उस पे भी उतना ही असर हो रहा है. इसे सेकंड हैंड स्मोक करते हैं बोलते हैं. तो सेकंड हैंड स्मोक इज ऑल्सो इक्वली बैड. अगर आपके अराउंड कोई कर रहा है तो आप उनसे या तो थोड़ा दूर चले जाए, क्योंकि आप वही हवा इनहेल कर रहे हो. सो सेकंड हैंड स्मोक इज ऑल्सो इक्वली बैड. आप जब स्टॉप करते हो तो आपके आजू बाजू वाले भी इसका बेनिफिट उन पे भी होता है. सो इन शॉर्ट, स्टॉप द डैमेज, स्टॉप क्विटिंग, ब्रीद राइट. जो मैंने पर्सनली ब्रीदिंग डायफ्रामेटिक सिखाया वो करते रहिए. मूव सेफली, exercise your aerobic exercises, your strength training program has to go follow, and monitor the intensity. जिस किस intensity से आप कर रहे हो एक वो भी ध्यान में रखना चाहिए. So your heart is the engine of your body. Treat it with respect that it deserves. Yeah. Any questions which can be taken up now? Thank you. थैंक यू डॉक्टर ख्याति. बहुत अच्छा इंसाइटफुल सेशन आपने आज प्रेजेंट किया, और शुरुआत से लेके आखिर तक सारी चीज़ें आपने बड़े क्लियरली बताई कि किस तरीके से स्मोकिंग हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाती है, क्या उसके इफेक्ट्स हमारे हार्ट पे पड़ते हैं, और किस तरीके से उससे बचा जाए, और अगर सेसेशन करना है तो उसके लिए क्या एफर्ट्स हमने करने हैं, और किस तरीके से हम अपने आप को उस चीज़ से बाहर ला सकते हैं, किस तरीके से हम अपने पर्सनल एफर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को और हमारे साथ वाले लोगों को इससे बचा सकते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इंसाइटफुल सेशन के लिए. और अगर कोई हमारे पार्टिसिपेंट्स अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं. हम लोग यहाँ पे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मौजूद हैं. अगर कोई भाई पूछना चाहे, कोई बहन पूछना चाहे तो जरूर आप अपना सवाल रखें. तब तक मैं अपने प्रश्नों से शुरुआत करता हूं. Yeah. किस तरीके से आप ये बताएं कि जो स्मोकिंग है वो हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स को ओवर टाइम पीरियड जो है वो किस तरीके से इफेक्ट करती है? सो स्मोकिंग की वजह से एज आई सेड कि एक तो वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, तो आपका बॉडी का फ्यूल ऐसे ही आधा हो जाता है. सेकंड, वो आर्टरीज के अंदर एक
एक स्टिकी सब्सटेंस क्रिएट कर देता है, स्टिकी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। इसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा है वहां से जो भी कोलेस्ट्रॉल है वो सारे आपके आर्टरीज में स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका आर्टरी अगर इतना एक डायमीटर था उससे वो डायमीटर कम हो जाता है, और उसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो उस जगह पे कम हो जाता है, एंड इवेंचुअली आपको पेन स्टार्ट हो जाते हैं। सो पेन को निग्लेक्ट ना करें। चेस्ट पेन थोड़ा सा भी हो रहा होगा तो दैट इज अ रीजन दैट वो आर्टरी नैरो हो गई है और हार्ट को उतने अच्छे से वो पंप नहीं ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, एंड दैट इज द रीजन यू आर हैविंग हार्ट अटैक्स। सो या जी। तो तो सभी को पता है कि स्मोकिंग जो है वो सभी लोगों के लिए हार्मफुल है, लेकिन स्पेशली जो लोग हैं जिनको हार्ट डिजीज है, उनके लिए स्पेशली ये क्यों ज्यादा हार्मफुल है? क्या क्योंकि एक्स्ट्रा इफेक्ट्स उनके ऊपर होते हैं? सो नॉर्मली अगर आपका हार्ट एक रेट पे पंप कर रहा है, ओके, और आप ये निकोटिन और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से वो जो पंप करने का स्ट्रेंथ उसको लगता है वो एनीवेज बढ़ जाता है। आप हार्ट अटैक से गुजरे हो, आप रिकवरी फेज में हो, हार्ट को आपको आराम देना है, उसकी जगह पे आप उसको और ज्यादा तनाव पे डाल रहे हो। आपका हार्ट रेट जो नीचे रहना चाहिए, आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है। हार्ट रेट बढ़ रहा है यानी हार्ट पे तनाव हो रहा है। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है यानी वो हार्ट पे तनाव हो रहा है। सो आप ये सब चेंजेस की वजह से आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते, ज्यादा वॉक नहीं कर पाते, आपको ज्यादा थकान लगती है। सो these are the changes that happens because of the smoking. और जैसे आप क्विट करते हो इमीडिएटली यू विल सी द रिजल्ट कि 20 मिनट्स में आपके हार्ट रेट बेस लाइन पे आना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, वो स्पाइक्स नहीं होते। जब ऑटोमेटिकली ये सब नीचे आता है तो आपको हार्ट को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, उसको इतना स्ट्रांगली पंप नहीं करना पड़ता जो अदरवाइज वो कर रहा था। सो जैसे इट्स दैट इज व्हाई इट इज एडवाइजेबल दैट आप स्मोकिंग क्विट करो सो द हार्ट कैन रेस्ट फॉर अ वाइल, ओके, इट कैन वर्क थोड़ा सा विद अ लेस स्ट्रेस। अच्छा, कैसे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स आप बता सकते हैं जो कि विच कैन हेल्प पेशेंट्स क्विट स्मोकिंग एंड प्रोटेक्ट देयर हार्ट हेल्थ? ऐसे कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं? हाँ, सो मेन जो मैंने बोला कि आप 4 Ds फॉलो करिए। फर्स्ट इज डीले। आपको जब क्रेविंग आता है यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, गेट अप, वॉक, पानी पी के आओ, थोड़ा सा कुछ मंचिंग कर लो। मंचिंग भी जब आप कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि चिप्स या ऐसे कुछ खाए, कुछ हेल्दी, कुछ फ्रूट्स खा लो, ओके, थोड़ा वॉक करके आ जाओ। इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, आप एक रूम में है तो थोड़ा सा बाहर फ्रेश एयर लेके आ जाओ। तो मेन है कि आप उसको डिस्ट्रैक्ट करो। आप जब डिस्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्रेविंग थोड़े टाइम के लिए होता है, वो चला जाता है। एंड एक्सरसाइज का असर आप एक दिन में या 2 दिन में आपको नहीं दिखेगा। एक्सरसाइज इज अ मेडिसिन, यू हैव टू वर्क आउट। आपको इसका असर आई एम श्योर 15 डेज में यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस। आपका कैपेसिटी थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, आपको थकान लगनी कम हो जाती है। सो exercise will not give you result in one day. Exercise will show you, but you need to have some patience for it. Also exercise will also have an effect on cravings, जिससे आप एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इतने आपके बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। these happy hormones will curb your cravings. Okay, so इसके लिए बोलते हैं कि आप जब क्विट करते हो तो try to enroll in an exercise program because that will act as a distractor. जी। अच्छा, कुछ लोग जो हैं कई बार एक्सक्यूज देते हैं स्मोकिंग के लिए कि मैं तो सिर्फ जो है डिनर के बाद ही पूरे दिन में एक बार स्मोक करता हूँ, या मैं कैजुअली स्मोक करता हूँ जब पार्टीज में होता हूँ। तो क्या उनका इफेक्ट भी उतना ही है जितना एक रेगुलर स्मोकर जो कि कहता है कि मैं एक दिन में पूरा एक पैकेट पी जाता हूँ या ज्यादा पी जाता हूँ? तो क्या दोनों इक्वल मान के चलने चाहिए हमें? इक्वल नहीं होगा, बट यस, अगर जो ज्यादा स्मोक करता है उस पे दिल दिल हार्ट अटैक या लंग इश्यूज काफी जल्दी आएगा कंपेयर टू द वंस हु आर एन ओकेजनल स्मोकर, पर डेफिनेटली असर तो होता ही है। उसका उसकी मात्रा कम हो जाती है, बट यस असर तो होता है। एट द एंड ऑफ द डे आप जब एज करते हो तो आपके ऑर्गन्स आर ऑल्सो शोइंग सम एजिंग इफेक्ट्स।
तो ये जो एजिंग इफेक्ट्स है, वो जो कम स्मोक कर रहा था उसमें भी वो जल्दी तो आ ही जाता है कंपेयर टू द वंस हु आर नॉट स्मोकिंग। जी। जो और शुरू में आपने जो एक कोरिलेशन बताया था लंग्स और हार्ट्स के बीच में कि दोनों एक यूनिसन में काम करते हैं, तो क्या जो लंग्स हैं वो भी इफेक्ट होते हैं स्मोकिंग से? सो अ गुड क्वेश्चन कि हाउ इज लंग अफेक्टेड। आप जब स्मोक करते हो तो नॉर्मली आप लंग्स क्या होता है, आप इनहेल करते हो, सांस अंदर ले रहे हो, लंग्स आपका फूलता है। और एक्सेल जो है इट्स अ पैसिव प्रोसेस, आपको उसके लिए कोई एक्टिवली कुछ नहीं करना होता है, हवा ऐसे ही बाहर आती है। जब आप स्मोक करते हो, ये जो इलास्टिसिटी होता है, ये जो आप इजीली ब्रीद आउट कर पाते हो, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है लंग का, उसकी वजह से होता है। आप जब स्मोक करते हो तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो खराब हो जाती है। लंग्स कैन नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। when it cannot come back to the original position, जो आप नेक्स्ट ब्रेथ लेते हो उसको और भी ज्यादा आपको मेहनत से वो ब्रेथ को लेना है। सेकेंड व्हाट इट डज इज, आप जब स्मोक करते हो तो जैसे मैंने बोला एल्वियोलाई होता है, कि जहाँ पे आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन जाता है बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आता है, तो वो एल्वियोलाई की परत इतनी थिक हो जाती है कि इट कैन नॉट, स्मोकिंग की वजह से इट बिकम सो थिक दैट आपका जो गैस एक्सचेंज होना चाहिए वो गैस एक्सचेंज नहीं होता। सो नाउ इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन गोइंग इन योर बॉडी, इट्स द कार्बन मोनोऑक्साइड विच कैन इजीली पास थ्रू दिस बैरियर। तो लंग्स, दिस इज वन रीजन कि आपका गैसेस नहीं पास होता। सेकेंडली, आपके ट्रकिया में, ओके, आपके पाइप, लंग पाइप, जो एयर पाइप है, वहां पे एक सीलिया होता है। ओके, ये सीलिया का फंक्शन ये है कि आपको जब भी थोड़ा सा, हमारे बॉडी में एज इन यू एंड मी ऑल्सो, थोड़ा सा कफ बनता रहता है, बट इट गेट्स रिमूव्ड। ओके, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बिकॉज वी डोंट कॉफ, वी आर नॉर्मल्स। पर ये जो स्मोकर्स रहते हैं, ये सीलिया गेट्स अफेक्टेड, तो उसकी वजह से जो भी कफ बनता है वो कफ अब वो बाहर नहीं निकाल पाते, वो फिर लंग्स में ही रहते हैं। और आपको पता है जब कफ जमा हो रहता है तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। सो स्मोकिंग इज गोइंग टू हैव एन इफेक्ट ऑन लंग्स इन दिस वे। आपका सीलियरी मूवमेंट्स पे असर करता है, आपकी लंग इलास्टिसिटी पे असर करता है, एल्वियोलाई जो मेम्ब्रेन है उसको थिक बना देता है, तो गैशियस एक्सचेंज में असर करता है, and that's how it overall reduces your lung capacity. जी। हमारे एक पार्टिसिपेंट है दीक्षा जी, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं। उनका प्रश्न है कि हाउ डज इट अफेक्ट विमेन एज बिटवीन 20 to 30 their heart health? Smoking a cigarette and marijuana consumption has similar effect or they have different effects? Because a lot of papers claim substance to be good for neural and psychomotor functioning. Okay, so smoking no, a cigarette or smoking marijuana is, the effects are going to be similar. And what happens, दोनों will cause you, will make you addicted to it. आपने आज ऐसे ही ले लिया है, but then you've seen the effect. Now these effects, these are stimulants. निकोटिन बोलो, मैरियोना बोलो, these are all stimulants. वो आपके ब्रेन को बहुत एक्टिव कर देता है and you have a feel good effect there. So every time then you will want that, okay, मुझे, I'm not well, अभी मुझे कुछ तो, मुझे बहुत एंजाइटी हुई है, let me feel good, and by taking all these medication, I mean by taking all these substances, उससे क्या होता है, टेम्पररी असर होता है, यू फील गुड, दैट इज फाइन, बट देन ग्रेजुअली आप अगर देखें तो दीज आर गोइंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, एंड मेन या वुमेन बोथ आर गोइंग टू हैव एन इक्वल इफेक्ट. Women are also childbearing, especially in the age group of 20 to 30. So that not only it has an effect on your lungs or your heart, it also has an effect on the reproductive system. So yes, the effects are going to be similar in men and women. Women is, they will also have effect on the other systems because they are on this, in this reproductive age group. They will have an effect there as well. जी, मेरे ख्याल से इसका शायद डबल इफेक्ट है, क्योंकि एक तो वुमेन के ऊपर, खुद के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है, और क्योंकि वो चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी उनकी, वो भी एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर काफी बड़ा इफेक्ट आता है इस चीज का। Correct. तो
और कोई क्वेश्चन अगर करना चाहें तो आप डायरेक्ट डॉक्टर ख्याति से पूछ सकते हैं सेशन में, अदरवाइज फिर हम लोग इसको रैप अप करते हैं। मेरे ख्याल से वी आर डन विद टुडे सेशन, नोबडी हैज एनी more questions for us today. So it was a very insightful session, Dr. Khyati. And as we wrap up, here are 3 simple takeaways from today's session on the basis of Dr. Khyati's answers. So on behalf of Heart Health India Foundation and SOC VPR, I sincerely thank Dr. Khyati Kothari for her valuable time and insights, and all of you for joining us. So before we close, a few reminders is stay tuned with HHIAF WhatsApp community for timely updates and information. हम वहाँ आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए एक साथ इकट्ठे होकर के आपको सपोर्ट देने के लिए वहाँ पर हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके हर तरह के सवालों का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जैसे लोगों के साथ में कम्युनिकेट करके अपने इश्यूज को शेयर कर सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं, ये जान सकते हैं। इस दुनिया में आपके बहुत सारे साथी हैं जो आपकी जैसी समस्याओं से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके पास अपनी भी कहानी है आपको बताने के लिए, और उनके पास समय है आपकी कहानी सुनने के लिए। तो हम आपके जैसे ही लोगों को एक साथ एकजुट करने के लिए इस तरह का हमने एक छोटा सा प्रयास HHIF के माध्यम से किया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारी कम्युनिटी में जुड़ें, और डॉक्टर कोठारी जैसे जो और हमारे वॉलंटियर्स हैं वो आपकी मदद करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, उनसे अपने सजेशंस लीजिए, अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी दीजिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर ख्याति कोठारी ने जो आज हमारे साथ में इंसाइटफुल सेशन शेयर किया है, इससे हम सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। तो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू डॉक्टर कोठारी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इनसाइट्स। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you. थैंक यू।